Hello everyone, welcome to our YouTube channel Biology Essentials. I'm Dr. Pooja Goyal. Today I have just created a YouTube channel and I hope जो भी मैं YouTube चैनल पे वीडियोस अपलोड करूंगी वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी, कंसेप्चुअल रहेंगी एंड यू विल लर्न इट मोर. ठीक है. इफ यू हैव मैनी मोर queries about any topic, you can just put your comment in comment section and you can do WhatsApp connection with us so that कि मैं आपकी क्वेरी सारी सॉल्व कर सकूं. ठीक है. वी आर बेसिकली फरीदाबाद बेस्ड and we will start the offline tuitions as well soon. I hope you will join me there also. ठीक है. और जिसको भी ऑफलाइन में अभी स्टार्टिंग में दूर की वजह से या वॉट एवर इज अ प्रॉब्लम, यू कैन जस्ट स्टे ट्यून विथ अस ऑन अवर चैनल. रेगुलरली वीडियोस अपलोड होंगी and I hope it will be beneficial for you. Each and every topic will be covered and conceptually it will be discussed with you. Okay. Now it's request to subscribe our channel Biology Essentials. Link will be provided and I hope you will do and have lot of benefit from our YouTube channel. Okay. Now today basically I am starting with the chapter 1 of the class 12, sexual reproduction in flowering plants. Today is a short video, so I'm just discussing the topic what we are going to cover in that chapter. Sequentially we will discuss in detail later on. Now the first chapter is sexual reproduction in flowering plants. So the content of this chapter is basically divided into 3 parts. What are flowering plants? These are also known as angiosperms. You all know. Basically our kingdom plant is divided into 5 divisions. So in deep you have studied 4 divisions that were algae, bryophyte, pteridophyte and gymnosperms. Today in class 12 we are going to discuss more about the angiosperms. Angiosperms are known as flowering plants, you all know. We will discuss the 3 events of the life cycle of the angiosperms: pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. Right? Pre-fertilization events basically involves the formation of gametophytes. What are gametophytes? These are the reproductive parts of the angiosperms. Okay. Now basically we will deal in the production of gametophytes. What are gametophytes? Male gametophytes क्या होते हैं, female gametophytes क्या होते हैं, आज मैं आपको बताऊंगी. And how they will produce and in which structure they are produced. Basically gametophytes are the cells which will interact, which will fertilize with each other to form the zygote. ठीक है. हम लर्न करेंगे कि गैमेटोफाइट कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, किस प्रोसेस से प्रोड्यूस होते हैं. बेसिकली अगर मैं मेल की बात करूं तो आपको सभी को पता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द एंजियोस्पर्म्स आर एंथर्स. राइट. मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर एंथर्स. ठीक है. एंथर्स having some structures, these are called pollen sacs. Okay. I'm just drawing the structures so that आपको वो और अच्छे से समझ आ सके. Basically what happen, where the pollen grains are produced and what is the function of pollen grain. Right. अगर मैं एक simple sober form का structure लूँ, this is our anther. Right. This is our anther or so called stamen. ठीक है. The upper part is anther, this part is the anther and this is the filament. मैं बहुत simplest सा diagram से अभी आपको समझाऊंगी. ठीक है. So this part is the anther and this is the filament. Basically filament का supporting structure होता है. This whole structure is known as stamen. Right. We have 4 structures in each anther. उनको हम बोलते हैं microsporangium. What we call microsporangium. Just have a look. ठीक है. 1, 2, 3 and 4. We are having 4
वेरी सिंपल स्ट्रक्चर आई एम जस्ट डिस्कसिंग विथ यू, ठीक है। नाउ अगर मैं इस एक माइक्रोस्कोप को जूम करके दिखाऊं तो इट विल कंटेन लेयर्स। ओके, वी विल डिस्कस द लेयर्स लेटर ऑन, जब मैं उसका स्ट्रक्चर डिस्कस करूंगी। बेसिकली आई एम टेलिंग यू, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम है, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, 1 2 3 एंड 4, and each microsporangium is containing the special cells. Each microsporangium is containing the special cells. उनको बोलते हैं हम बेटा sporogenous tissue. What we call sporogenous tissue. Let me discuss. सेंटर में जो मैं cells कुछ ड्रॉ कर रही हूँ, these are the sporogenous tissues, right? ये sporogenous tissue basically will form the मेल गैमेटोफाइट, राइट। अभी जो स्पोरोजेनस टिश्यू है, आई एम जस्ट राइटिंग दीज आर द स्पोरोजेनस टिश्यू, दीज आर द स्पोरोजेनस टिश्यू। और जो ये स्पोरोजेनस टिश्यू है बेटा, इनको माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल सकती हूँ मैं। क्या बोल सकती हूँ? माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्यों बोल रही हूँ मैं इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल? क्योंकि माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे, राइट। नाउ आपको ये बात भी पता होनी चाहिए बेटा, जब भी कोई सेल मदर सेल होता है वो डिप्लॉइड होता है। वो क्या होता है? डिप्लॉइड। डिप्लॉइडी का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनेंगे। 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। बेसिकली अगर मैं बात करूं, 2 ही तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं, ईदर दे आर कंटेनिंग सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम और दे आर कंटेनिंग डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। सो जो हायर प्लांट्स की बात करूं, हायर एनिमल्स की बात करूं, तो मोस्ट ऑफ द हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स कंटेन डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। सो बेसिकली स्टार्टिंग डिप्लॉइडी से होती है। जो ऑर्गन्स, होल ऑर्गेनिज्म इज डिप्लॉइड, ऑब्वियसली ऑर्गन्स विल ऑल्सो बी द डिप्लॉइड। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए बेटा, अगर ये डिप्लॉइड हुआ, फीमेल डिप्लॉइड हुई, तो जो उनके ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो तो टेट्राप्लॉइड हो जाएंगे। तो बेसिकली जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उनके सेल्स को हायर ऑर्गेनिज्म के हैप्लॉइड होना ही पड़ता है। दे हैव टू बी द हैप्लॉइड। और जो हैप्लॉइड होने का प्रोसेस है बेटा, हम उसको बोलते हैं मियोसिस। क्या बोलते हैं? मियोसिस। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, तब भी मियोसिस में हम डिप्लॉइडी से हैप्लॉइडी गेन करते हैं, क्योंकि जो बेसिकली फाइनल सेल बनता है, फाइनल गैमेटोफाइट बनेगा, उसको हैप्लॉइड ही बनना पड़ेगा। लेकिन जो वो सेल है वो किससे हैप्लॉइड बनता है? डिप्लॉइड से। मदर सेल हमेशा डिप्लॉइड होगा। अब जब वो सक्सेसफुली गैमेटोफाइट बना देगा तो इट विल बी द हैप्लॉइड, राइट। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, एक ही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसको हमने स्टेमेन बोला। स्टेमेन का जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट मीन्स दिस पार्ट इज द एंथर, ओके, एंड बॉटम पार्ट इज द फिलामेंट। फिलामेंट का सपोर्टिंग रोल होता है। बेसिकली जो गैमेटोफाइट है वो एंथर के अंदर सेंटर में सेल होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू, उससे प्रोड्यूस होते हैं। जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उसका ईच सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर मदर सेल, बिकॉज इट विल प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर। इट विल प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर, राइट। अभी माइक्रोस्पोर इज नॉट द मेल गैमेटोफाइट। अभी इसमें थोड़े से डेवलपमेंट चेंजेस होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? पॉलन ग्रेन्स। क्या बोलते हैं उनको हम? पॉलन ग्रेन्स। So what are pollen grains? Pollen grains are the male gametophyte. What are pollen grains? Pollen grains are the male gametophyte. अब हमें microspore is the structure produced just before the formation of pollen grain. जब माइक्रोस्पोर बना, ये हैप्लॉइड हो गया, ठीक है। हैप्लॉइडिक माइक्रोस्पोर और बनते वक्त ही आ जाती है, बट थोड़े से डेवलपमेंटल चेंजेस के बाद वो एग्जैक्टली मेल गैमेटोफाइट बनता है, जिसको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। नाउ जब ये पॉलन ग्रेन बना, और बेटा मेरे को आपको एक और चीज बतानी है, जब भी माइक्रोस्पोर मदर सेल है और उससे क्या बनता है? पॉलन ग्रेन। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। आपको पता है मियोसिस 1 हुई तो 1 से 2, मियोसिस 2 हुई 2 से 4। तो जब भी पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, एक से डायरेक्टली कितने बनेंगे? 4।
सो कॉल्ड पहले 4 माइक्रोस्पोर बने और वो 4 माइक्रोस्पोर किस में कन्वर्ट हो गए, 4 पॉलन ग्रेन्स में। और जो 4 पॉलन ग्रेन्स है बेटा, ये अभी आपस में चिपके हुए रहते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पॉलन टेट्राड। क्या बोलते हैं उसको, टेट्राड, क्योंकि अभी वो चिपके हुए हैं, अभी वो अलग नहीं हुए। जब ये टेट्राड बना, ठीक है बच्चा, फिर वो अलग अलग हो जाएंगे, तो बेसिकली 4 पॉलन ग्रेन आपको बनकर तैयार मिलेंगे, राइट। ठीक है, अब जो ये पॉलन ग्रेन्स बने, ठीक है, अब ये पॉलन ग्रेन का एग्जैक्टली ये स्ट्रक्चर नहीं है, दिस इज द ओनली रफ डायग्राम कि हर एक स्पोरोजिनस टिश्यू, हर स्पोरोजिनस टिश्यू का एक सेल को माइक्रोस्पोर मदर सेल बोला, और एक सेल क्या बना रहा है, 4 पॉलन ग्रेन्स। और वो आपको पता है पॉलन ग्रेन्स आर द मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट का मतलब है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सेल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के सेल को फ्यूज करेगा, राइट। अगर मैं बात करूं इसके एग्जैक्ट स्ट्रक्चर की, अब मैं एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाऊंगी बेटा। बेसिकली पॉलन ग्रेन की 2 लेयर्स होती हैं, आउटर लेयर और उसके अंदर होती है बेटा इनर लेयर, ठीक है। आउटर लेयर को हम बोलते हैं एक्साइन, क्या बोलते हैं, एक्साइन। इनर लेयर को हम बोलते हैं बेटा इंटाइन, इनर लेयर को बोलते हैं हम इंटाइन, ठीक है। नाउ एक्साइन एंड इंटाइन आर द लेयर्स ऑफ द पॉलन ग्रेन्स। सेंटर में उसका न्यूक्लियस होता है, सेंटर इज कंटेनिंग द न्यूक्लियस, ठीक है। एंड बेसिकली इनसाइड द इंटाइन 2 further partitions are there in the pollen grain, ठीक है, 2 further cells are there in the pollen grains, ठीक है। एक को हम बोलते हैं बेटा वेजिटेटिव सेल, एक को क्या हम बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल, और एक को हम बोलते हैं जनरेटिव सेल। व्हाट डज इट मीन, बेसिकली बेटा जो हमारा जनरेटिव सेल है, पॉलन ग्रेन इटसेल्फ इट इज अ सेल, मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। मेल गैमेटोफाइट में 2 सेल्स हैं, एक सेल है वेजिटेटिव सेल और एक सेल है जनरेटिव सेल। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो मैंने जो ड्रॉ करा है दिस इज द वेजिटेटिव सेल, अंदर जो ड्रॉ करा है वो कौन सा सेल है, वेजिटेटिव सेल। और हर वेजिटेटिव सेल के अंदर फ्लोटिंग जनरेटिंग सेल है, दिस इज द जनरेटिव सेल, दिस इज द जनरेटिव सेल, राइट। नाउ एक्चुअली व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस 2 सेल्स, बेसिकली आपको पता है जो ये हमारा स्ट्रक्चर है, किसका हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है, ये पॉलन ग्रेन्स का। किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है, पॉलन ग्रेन का। पॉलन ग्रेन की आउटर लेयर जो प्रोटेक्टिव नेचर होता है इनका बेसिकली, और आउटर लेयर का सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड में पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ आउटर लेयर। आउटर लेयर इज कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलिनिन, एक्साइन इज कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलिनिन। दिस इज वेरी हार्श केमिकल जो कि इजीली अलाउड नहीं करता किसी भी चीज को बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जाना, ठीक है। इसलिए हम पॉलन ग्रेन्स को बहुत सालों तक इजीली क्रायो प्रिजर्व कर पाते हैं, ठीक है, और पॉलन ग्रेन्स इजीली डैमेज नहीं होते। बेसिकली अगर ये कोई चीज अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाना अलाउ नहीं करेगा तो जो अंदर के सेल्स हैं हाउ इट विल कम आउट। सो जहां जहां स्पोरोपोलिन प्रेजेंट है दैट इज फाइन, जहां स्पोरोपोलिन एब्सेंट है उस एरिया को बोलते हैं बेटा जर्म पोर। क्या बोलते हैं इसको, जर्म पोर। Every part is containing the sporopollenin, but where sporopollenin absent, the pore is called germ pore through which the inner content comes out, ठीक है। बेसिकली होना क्या है बेटा, जो ये हमारा पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, इसकी ऊपर की लेयर एक्साइन, अंदर की लेयर इंटाइन, ठीक है। एक्साइन और इंटाइन के और अंदर जाके देखेंगे तो एक बड़ा सा वेजिटेटिव सेल, एक बड़ा सा वेजिटेटिव सेल, और वेजिटेटिव सेल के अंदर फ्लोट करता हुआ जनरेटिव सेल।
बेसिकली जो हमारा काम का सेल है, जो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, वो होगा बेटा जनरेटिव सेल। अगर मैं बात करूं, वैसे अपकमिंग वीडियोस में पूरा चैप्टर सिक्वेंशियली अपलोड होगा। अभी मैं जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया इस चैप्टर का। तो बेटा मेरे को ये बताना था, जैसे मैंने आपको अभी मेल का पार्ट बताया था स्टेमेन, राइट, ऐसे अगर मैं फीमेल की बात करूं तो बेटा फीमेल के स्ट्रक्चर को हम कार्पेल, पिस्टिल, सो कॉल्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कार्पेल या पिस्टिल। ये फर्दर 3 कंपोनेंट्स का बना होता है। पहला कंपोनेंट है आपका स्टिग्मा, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज स्टाइल एंड अदर थर्ड पार्ट इज ओवरी, अदर थर्ड पार्ट इज ओवरी, राइट। नाउ बेटा बेसिकली होता क्या है, अब मेल गैमेटोफाइट जो प्रोड्यूस हुआ माइक्रोस्पोर मदर सेल से, माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस हुआ, उस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मींस माइक्रोस्पोर का बनना फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। जो मेल गैमेटोफाइट है उसके बनने की प्रोसेस को आपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा, बिकॉज माइक्रोस्पोर इज प्रोड्यूसिंग फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल, वाइल फीमेल गैमेटोफाइट के प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। होता क्या बच्चा, एक्चुअली ओवरी के अंदर, जैसे आपने यहाँ पे देखा था एंथर के अंदर स्पेशल टिश्यूज थे जिसको हमने स्पोरोजेनस टिश्यू कहा था, ओवरी के जस्ट सेंटर में टिश्यू होते हैं बेटा, हम उसको बोलते हैं न्यूसेलस। क्या बोलते हैं उसको, न्यूसेलस। न्यूसेलस टिश्यू का हर सेल को हम बोलते हैं बेटा मेगास्पोर मदर सेल। बस दोनों में यही डिफरेंस है, जब मेल गैमेटोफाइट की बात करते हैं तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, और अगर जब हम किसकी बात करते हैं फीमेल की तो उसको बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। जैसे बेटा ये माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है, वैसे ही हमारा मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है, ठीक है बेटा। मेगास्पोर मदर सेल में भी क्या होगा, मियोसिस। क्या होगा बेटा जी, मियोसिस, और इस मियोसिस से क्या बन जाएगा, मेगास्पोर। इस मियोसिस से क्या बन जाएगा, मेगास्पोर। एक्चुअली मेगास्पोर इज नॉट द फीमेल गैमेटोफाइट, बट दिस इज द जस्ट प्रीरियर फॉर्म ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। फाइनली बनना क्या है इससे, जैसे आपने देखा उससे माइक्रोस्पोर बना था, इसमें क्या बना, मेगास्पोर। वो प्रोसेस कौन सा था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये प्रोसेस कौन सा है, मेगास्पोरोजेनेसिस। बट इसमें थोड़े से डेवलपमेंटल चेंजेस आते हैं, जैसे हमारा मेल में माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बनते वक्त डेवलपमेंट चेंजेस आए थे बेटा, ऐसे ही फीमेल में मेगास्पोर से क्या बनेगा, एम्ब्रियो सैक। क्या बनेगा, एम्ब्रियो सैक। बेटा डोंट गेट कंफ्यूज विद द नेम एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक इज द फीमेल गैमेटोफाइट। बेटा इस सिंपल से प्रोसेस से बना है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर मदर सेल्स इन्वॉल्व हुए, जो कि मेगास्पोर मदर सेल्स आर द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस। सिंपल सा पहले मेगास्पोर बनेगा, आफ्टर मियोसिस एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर बनेंगे। मियोसिस में जनरली आपको पता है मदर सेल से 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। देन एम्ब्रियो सैक विल बी द स्ट्रक्चर फाइनल which represent the female gametophyte. Now डिटेल में बाद में बात करेंगे। बेटा होना क्या है, मेल गैमेटोफाइट जो पूरा का पूरा पॉलन ग्रेन है, इसको कहाँ पे लैंड होना है, स्टिग्मा पे। किस पे लैंड होना है, स्टिग्मा पे। इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा, टू द स्टिग्मा। इस प्रोसेस को बेटा हम बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन से मेल गैमेटोफाइट स्टिग्मा के ऊपर आके लैंड करा, ठीक है बेटा। अब ये पूरा का पूरा पॉलन ग्रेन एंटर नहीं होता, ठीक है बेटा। एक्चुअली होता क्या, मैंने आपको बताया था पॉलन ग्रेन के अंदर 2 सेल्स हैं। अपर बिग सेल वाज द वेजिटेटिव सेल और बॉटम सेल वाज द जनरेटिव सेल,
ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल आप नहीं लिखेंगे। सो बेटा व्हाट हैपेंड एक्चुअली, जब पॉलन ग्रेन कोई भी किसी का भी प्लांट का गिर सकता है, तो आपको पता है अगर पॉलन ग्रेन कंपैटिबल है, कंपैटिबल मीन सेम टाइप का है, तब स्टिग्मा अलाउ करेगा पॉलन ग्रेन को पॉलन ट्यूब बनाने के लिए। स्टिग्मा क्या अलाउ करेगा? पॉलन ग्रेन को पॉलन ट्यूब बनाने। दिस इज द पॉलन ग्रेन जो गिरा हुआ है, और पॉलन ट्यूब बन के फीमेल गैमेटोफाइट। बेटा एक्चुअली होता क्या है सुनेंगे, ये पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट था, आपको बताया था, और जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो कहाँ से बना? जो सेंटर में हमारे पास न्यूसेलस था उसमें मेगास्पोरोजेनेसिस हुआ, मेगास्पोर बना और क्या बन गया? फीमेल गैमेटोफाइट। बेटा जो सेंटर में स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? फीमेल गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेटोफाइट पूरा एंटर नहीं करेगा बेटा, मेल गैमेटोफाइट एक ट्यूब बनाएगा, और ट्यूब में से आपको मैंने बताया था दो सेल है, एक वेजिटेटिव सेल और नीचे वाला सेल क्या था बेटा जी? जनरेटिव सेल। तो जनरेटिव सेल के अंदर से गैमीट्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? गैमीट्स। पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट लैंड होता है स्टिग्मा के ऊपर, और मेल गैमेटोफाइट पूरा अंदर नहीं जाता, मेल गैमेटोफाइट अपने अंदर के क्या रिलीज करता है? गैमीट्स। गैमीट्स कहाँ होते हुए जा रहे हैं बेटा? पॉलन ट्यूब के अंदर दो गैमीट्स रिलीज होंगे। दो क्यों होते हैं बेटा? आपको ये भी पता होना चाहिए बेटा, एक वेजिटेटिव सेल होता है और जनरेटिव सेल दो होते हैं। इसको बोलते हैं बेटा 3 स्टेज पॉलन ग्रेन, 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन। तो एक वेजिटेटिव सेल था जिसका जस्ट न्यूट्रिटिव रोल था, और हमारे वेजिटेटिव सेल कितने थे बेटा? 2, 1 और 2। ठीक है बेटा, जब वेजिटेटिव सेल ने के नीचे जो जनरेटिव सेल है उन्होंने 2 गैमीट रिलीज करे, 2 गैमीट पॉलन ट्यूब से होते 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 एम्ब्रियो सैक के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब एम्ब्रियो सैक क्या होता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फाइनली व्हाट विल हैपन, मैं जस्ट एक कंक्लूजन दे रही हूँ आपको। एक्चुअली बेटा होता क्या है, एंजियोस्पर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या फीचर है बेटा? डबल फर्टिलाइजेशन। अभी अभी मैंने आपको बताया कि 2 मेल गैमीट्स आए। क्या बताया मैंने अभी आपको? एक पॉलन ग्रेन से कितने मेल गैमीट्स आते हैं? 2 मेल गैमीट। तो बेटा जो हमारा फीमेल एम्ब्रियो सैक है बेटा, इसका भी 2 जगह फ्यूजन होता है। एक मेल गैमीट एक सेल को फ्यूज करेगा। बेटा अभी मैं आपको रफ स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक का बना के दिखा रही हूँ क्योंकि कंक्लूसिव है थोड़ा सा। ठीक है, इसके एंटीपोडल्स होते हैं 3, इनका सपोर्टिंग रोल होता है। बेसिकली जो सेल्स फर्टिलाइज होंगे मैं उनके बारे में बता रही हूँ बेटा। ये 2 सिनर्जिड्स हैं, इनका भी सपोर्टिंग रोल होता है। बेसिकली सिनर्जिड के जस्ट ऊपर एक सेल होता है, इसको हम बोलते हैं बेटा एग। ये एम्ब्रियो सैक है जो हमारा क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट। ये क्या है बेटा? हमारा फीमेल गैमेटोफाइट। तो बेटा फीमेल गैमेटोफाइट का एक तो एग इन्वॉल्व होगा फर्टिलाइजेशन में, और बेटा सेंटर में होते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाइज। हमारा जो एम्ब्रियो सैक है बेटा, इसका दूसरा नाम है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। सुनेंगे ध्यान से बेटा, इसमें 7 सेल्स 1 2 3, 3 एंटीपोडल्स, इनको हम क्या बोल रहे हैं बेटा जी? एंटीपोडल्स। एक एग सेल, और ये दोनों क्या है बेटा जी? सिनर्जिड्स। इनको क्या बोला बेटा जी? सिनर्जिड्स। नाउ बेसिकली बेटा, और ये जो सेंटर में सेल है इसको हम सेंट्रल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल। क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रल सेल। नाउ अभी आपको ट्यूब निकलती हुई दिखाई थी, जब एक्चुअली ये एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट कहाँ पे है? ओवरी के अंदर। कहाँ प्रेजेंट है बेटा जी? ओवरी के अंदर। और ओवरी के ऊपर स्टाइल भी होता है, आपने देखा था। ठीक है, ओवरी के ऊपर स्टिग्मा भी होता है, जहां से पॉलन ग्रेन आया था और ट्यूब बनाई थी, आपने देखा
पिछले डायग्राम में। अब बेटा देखेंगे जो सिनर्जिस्ट हैं बेटा, इनका कोई भी रोल नहीं होता है बेसिकली फर्टिलाइजेशन में। ये एक सपोर्ट करते हैं, रोल इनका है गाइड करना, ठीक है। सिनर्जिस्ट के अंदर बेटा कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। बेटा एक गाइड करते हैं ट्यूब को जाने में। बेसिकली ट्यूब को अपने गैमीट कहाँ रिलीज करने हैं? एग के पास। क्या रिलीज करने हैं? इन फिलीफॉर्म्स का जस्ट गाइडिंग रोल है, आई एम टेलिंग यू। मेन जो स्ट्रक्चर है वो क्या है बेटा जी? एग। एग के पास एक मेल गैमीट पहुंचा, वन मेल गैमीट फ्यूज करा, फ्यूज करके एग से क्या बन गया? जायगोट। क्या बन गया बेटा? जायगोट। एक मेल गैमीट एग से फ्यूज करा, एक मेल गैमीट दो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करा। तो जो दो पोलर न्यूक्लियाई थे और एक मेल गैमीट मिलके फ्यूजन का नाम पड़ा बेटा इसका ट्रिपल फ्यूजन। क्या नाम पड़ा जी? ट्रिपल फ्यूजन। और जो स्ट्रक्चर बना कलेक्टिवली, 3 सेल का फ्यूजन हो गया, 2 न्यूक्लियस थे और एक मेल गैमीट। तो बेटा इस प्रोसेस को, जो स्ट्रक्चर बना इस प्रोसेस से, इसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैसे बना पैन? एक आई हैव नॉट रिटन, मैं राइट कर देती हूँ। 2 पोलर न्यूक्लियाई से, किससे? 2 पोलर न्यूक्लियाई प्लस फ्यूज्ड बाय 1 मेल गैमीट। तो कितने बन गए बेटा जी? इसको बोल दिया हमने पैन। क्या बन गया स्ट्रक्चर को? पैन। और किस प्रोसेस से बना पैन? ट्रिपल फ्यूजन। नाउ अब बस लास्ट में कुछ कंक्लूसिव ये निकला कि जो आपके सपोर्टिंग सिनर्जिस्ट थे, सपोर्टिंग एंटीपोडल से सब डीजनरेट हो जाएंगे। एम्ब्रियो सैक में रह क्या जाएगा बेटा? एक तो आपका पैन रह गया जो ट्रिपल फ्यूजन से बना है, और एक आपका क्या रह गया बेटा जी? जायगोट। ये फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आ गए। क्या आ गए? फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। जब हमारा एग एक मेल गैमीट से फ्यूज हुआ और हमारे पोलर न्यूक्लियाई दूसरे मेल गैमीट से फ्यूज हुए, तो फर्टिलाइजेशन का 1, फर्टिलाइजेशन 2, तो इसको कलेक्टिवली क्या बोला बेटा हमने? डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोला बेटा हमने? डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नाउ अब इन दोनों फर्टिलाइजेशन के बाद होना क्या है, उस इवेंट को कलेक्टिवली बोलेंगे बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्या बोलेंगे बेटा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अभी तक जो हमने करा था बेटा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में गैमेटोफाइट का बनना, पॉलन ग्रेन का बनना और एम्ब्रियो सैक का बनना। फर्टिलाइजेशन में पॉलिनेशन होना और एग का और पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूज होना। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में अब जाइगोट किस में डेवलप होगा बेटा जी? एम्ब्रियो में। और पैन किस में डेवलप होगा? एंडोस्पर्म में, ठीक है बेटा। और जो हमारी ओवरी है इसके ऊपर, एम्ब्रियो सैक के ऊपर किसकी वॉल थी बेटा जी? ओव्यूल। ओव्यूल के ऊपर क्या था बेटा जी? ओवरी। यही तो था, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक। बेटा जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में है वो ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी बेटा फ्रूट में, और जो हमारा ओव्यूल था वो किस में कन्वर्ट हो गया बेटा जी? सीड में। ये 4 इवेंट्स आ गए, ठीक है। एम्ब्रियो सैक का जो न्यूक्लियाई थी, पोलर न्यूक्लियाई, वो किस में कन्वर्ट होगी? पैन में। और जो एग था वो किस में कन्वर्ट हो गया बेटा जी? जाइगोट में। फाइनली एम्ब्रियो में, ठीक है। सो दीज आर द इवेंट्स विच आर नोन एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। बाकी का कवर हम सिक्वेंशियली करेंगे। एंड आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, एंड आई विल कम टू यू विद मोर अट्रैक्टिव डायग्राम्स एंड ऑल। अभी जस्ट एक स्टार्टिंग किया है, सो आई ट्राइड कि लेट मी टीच समथिंग टू यू,
and you all are welcome again to our channel Biology Essentials. ठीक है? And don't forget to follow us. Don't forget to subscribe us for more and more videos. Thank you for watching us. Bye bye. Take care.